आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दिख रही है? लिंक बन गया? प्लस ये दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो रहा है, ब्राउजर में कर रहा है ज्यादा वहां पीछे नहीं। ठीक है, आप यही बैठो, ठीक है ना? तो ये ऑनलाइन इस पे करेगा, ऑनलाइन ये तो आप साइड में कर सकते हो, पेज में अगर मुझे वहां जाना होगा आप फिर चेंज नहीं कर सकते उधर से दिखेगा नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आप यहाँ पे चेंज कर लेना, मैं बोलूंगा नेक्स्ट। सो चलो स्टार्ट, आप सब लोग रेडी हो? मैं आपके मैक्सिमम 15 मिनट ले लूंगा, अगर हो सके उससे कम, क्योंकि मुझे पता है खाना खाना है सबको भूख लगी है, लेकिन हम इसको अच्छा इंटरेक्टिंग सेशन बनाएंगे। I'll be talking in English as well as in Hindi, है ना? जहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होगा आप मुझे बताने की कोशिश करना, इन केस अगर नहीं तो you can later on connect with me. So therefore, without wasting my time, let us start our session. It is, the title is how to publish research paper in top tier journals. So before starting the session, I want to extend my gratitude to Kanpur University for inviting me, giving me opportunity to have dialogue with you all young minds to discuss what research is and what should be the structure of the research so that we will be successfully able to publish in top tier journals. As some of you may be research scholars, some students, and some are beginners. So therefore, we will make it easy to complex. We will try to understand basic learnings of research. So as you are aware about the title, how to publish, we will learn how to publish paper. Then the second part of the title is in top tier journals, means Scopus, Q1, Q2, peer reviewed, and so on. Next. So if you try to understand the literal meaning of research, it means read and search. Every one of you may be knowing about the term research, but what is the focus of this terminology? What is the literal meaning of research? It means put research, then research again, then have focus. So therefore, in this very presentation, we are trying to learn writing skills, research, how to write research. The second is what should be the paper, structure of the research paper. The third counter will be what should be the sections, various sections in the research paper. And finally, how to improve our writing skills. And lastly, we will have question and answer. So these are the basic terminologies of the research, as I have told you already answer. So we will not focus on the picture. I will give you some practical examples. So for example, you are beginners or you are research scholars in first year or second year or fourth year, but you are unable to understand how to target good journalists, how to publish. Every journal is having its pattern, rules and regulations. They demand certain areas. For example, Journal of Finance. They will be publishing only the topics which are related to finance. For example, Journal of Social Science. They will be taking the core areas of social science. So therefore, you have to be, focused. What are the guidelines of the journal? This is one of the green signals to publish in top 10 journals. For example, you are in sociology or life learning subject. You want to publish in economic journal. So it will get drastic rejection. So you have to be very cautious. You have to read all guidelines before
submitting any research paper. Next. So read and serve. What we are trying to understand. Read and serve. You have to read again and again. To publish in top journal, you have to at least read the research paper 7 to 8 times because the terminology is altogether different. Language is very standard. The method and technique is used in a paper. They are all high. So therefore you cannot take it in one go. You cannot, download research paper and read just abstract and findings. You have to read it at least 7 times. Once you will read, you will be successful in reading and understanding it 7 times, then definitely your mind will run. You will get ideas. You will need to know how to use the methodology. You will understand the structure of the paper which you have read 7 times. So you are getting awareness about the structure of the paper, about the standard language of the paper. So it cannot, you cannot do it by thorough reading. So therefore be focused. Read only one paper. If it take 1 month, if you will, download one paper from the top Super Journal, read it 7 to 8 times and be focused. Don't go here and there. Just focus on it, read it again and again, read it again and again. जब तक आप इसको रट ले लोगे, जब आप इसको रट ले लोगे, you will be understanding what is the structure, what part should be done. As this presentation, should have been 2 hours. So I am skipping. I am giving you basic knowledge because I know, it is a long time and we are not in a position to make it such a wide, session. So therefore, I will give you in between tips only, basics of the research. So these are, literal meanings that what we should do or what we should not do in the research. So then the second thing I want to share with you, you have to identify the research topic, identification of the research topic. So you have to identify the problem. For example, in gender, there is gender discrimination, gender issue, gender empowerment, sustainable development goals. Each of you are having, particular specialization. You are dealing with particular subject matter. Some may be from the background of sociology, some pol science, some economics. So therefore, you have to first identify the problem on which you are going to do. Now the question is how you will be able to identify that very problem. अब हमें रिसर्च करना है और अब हमें रिसर्च में देखना है हम किस पे रिसर्च करें, ये क्वेश्चन है ना। जब आप पीएचडी में आ जाओगे या एमडी में आ जाओगे, आपको सुपरवाइजर बताएगा कि लाओ सिनॉप्सिस, आप अपने दोस्तों से पूछोगे, है ना। सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज द आंसर, वेयर टू फाइंड द प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको लिटरेचर पढ़ना है। जिस तरह मैंने आपको बोला, एक पेपर आपको एटलीस्ट 7 टाइम पढ़ना है। दिस इज नाउ ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर, it is not a textbook knowledge. So therefore research is having its own knowledge. We are using statistics, we are using econometrics in research methodology, we are knowing about sampling techniques. So therefore identifying any particular research problem, you should understand it in own language. English is a secondary language. So for example, you are having Hindi, our local language, my local language is Kashmiri, somebody is having Bhojpuri and all. So you should try to understand the research, very problem of research in your own language, and you should be able to in a position to share that, problem, share with any other person. For example, मैं आप लोगों में किसी को बोलूँगा कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, क्या आप करना चाह रहे हो, तो at first you should be able to communicate that research problem in local language. Okay, once we have identified that, suppose we have identified the research problem, the second is how to do it. Then we have to select the literature view. Where from we will have a literature view? Number one, research engine, Google Scholar. Don't do simple Google search. Go to Google Scholar. Then the second is research gate. Okay, then there are domains. There are problems from super journals like Web of Science, Superior. So therefore the first research engine should be Google Scholar. Then there is SSRN library. It is a digital library of everywhere.
SSRN library. If you do it in a Google SSRN library, their portal will come. So you can search particular topics on that. For example, you are going to make some research on this new education policy. Where you are be able to finding good or this representative research material on this. You have to go particular website of Ministry of Education. Or someone wants to do research on finance. There is mostly Ministry of Finance, they are having their own website. So all documents, policy documents, ministry, every ministry in India, they are having their website. So besides this ministry level, if you want to go to touch some global insight, there is World Bank, namely World Bank. World Bank is doing research for all countries. There are domains where you can download policy papers and materials so that you can get insights. We are here discussing that how to process for the research problem. We have identified the research problem. We understand the research problem now in our own language. Now the question is how to proceed, how to get literature. Students are complaining, sir, we are not getting literature, we are not getting papers. So they will not get unless and until they are having the right direction. In research, there is a process called the right direction. From whom you are getting that right direction? One, professors at the university, senior scholars who have done their PhD, or friends who are having experience. Then you should be able to have right resources. What are the right resources? Websites prominently, Google search engine like ResearchGate, LinkedIn, they are sharing papers, Twitter. Don't use social media for the fun only. Use it for your capability and capacities. Try to explore your research activities by social media. Understand the global world. It is a global world, and this global world is connected to different windows like ChatGPT. After ChatGPT, where is Kanpur University? It will give full details. Kanpur University has been established for these years. There are a lot of click now. You can practically check it. If you tell ChatGPT who is Firdaus Malik, he will give you information. So before 50 years, the PhD, the research was very tough. You have to go physically to the library, collect the books, and get the information. It was time saving, time consuming. Nowadays, on your fingertips, opening the mobile, it will tell you the information about New York, about New Delhi, about Kanpur, about Lucknow within seconds. All is under our fingertips. So therefore, research has changed its pattern. It is now innovative research where you should be able to have knowledge about the rich resources. So we were at how to find relevant research material, relevant research paper. Again, we will repeat. Scholar, ResearchGate, SSRN Library, World website, IMF, and there are many more NGO type they are having the organization, government websites. What about ERIC? 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 There may be other. So I am finalizing some research getting them. You may be having more knowledge about other, so you can use them. Then after that, once we have collected now literature review. Now how to deal with this literature review? You have to be there are 1,000 years of research papers. You have to focus on particular terms. Let me share you my research topic. My research topic was comparative analysis of financial behavior of poor and poor. It was a case study of slums and beggars in Lucknow and Calcutta. It was a comparative study I did in my PhD. So after getting the literature review, there are key terms in my topic. One is financial behavior, then slums and beggars, company to study between Lucknow and Calcutta. So I have to be focused now. What are the papers which are published on slums, on beggars in India, Lucknow and Calcutta? I have to, now make status of these papers. I have to keep these papers in one folder. Then I will have a global perspective about beggars and slums.
So I will have one folder of literature papers. They will be with the title of global perspective. So one is writing the literature review. Now the question is how to write the literature review. It should be totally focused under the title. It should not tell any more story. It should be focused. This work has been done in New York. They were targeting slums and beggars. They are finding it. That is it. Similarly, then you have to connect to your literature. First, you will talk about global perspective, then national perspective, what happened in India. Then the particular cities. I am giving the example of my research. I will focus on Lucknow and Kolkata. Then there is a question in research. What is your research gap or scope of your research? So यहाँ पे आ जाता है बंदा जो पेपर नहीं पढ़ेगा अच्छे से, है ना? यहाँ पे तकलीफ होती है कि मेरी क्या है स्कोप। तो स्कोप तभी आ जाएगा जब आप 100 पेपर या 30 पेपर पढ़ोगे। उन 30 पेपर में फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंशियल बिहेवियर पे किया, अब आप में से कोई करना चाहेंगे inequality among these vulnerable populations, slums and beggars, gender inequality, gender problems, women. You can do it, but you cannot have the idea about research gap or research problem unless and until you will read literature. And research में एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, हम कोई बात ऐसे ही नहीं कह सकते जैसे न्यूज़पेपर से आप लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन ले ली या किसी दोस्त से हमने कोई बात। रिसर्च में हम तब तक कोई भी लाइन नहीं लिख सकते हैं unless and until we are having references. हमें रेफरेंस होनी चाहिए। We have to cite the papers. For example, हम बता रहे हैं इंडिया is going to become the third largest country. ये सबको पता है, ये हम लिख सकते हैं रिसर्च में? We cannot. हम तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक हम साइट कोई ना करें किसी पेपर में ये साइट क्या होगा। समझ आ गया? जब भी हम कोई क्रिटिकल रिव्यू, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, कोई भी स्टडी करें तो वी शुड हैव सोर्सेस व्हाई वी आर। फॉर एग्जांपल अगर जो क्या बोलते हैं कंट्री में होते हैं रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में वो फिर ना वो राइवल करते हैं, फाइट करते हैं आपस में, एक दूसरे की बातें, आप लोगों ने ये गलत किया, हम लोगों ने ये गलत किया। तो रिसर्चर जब आप न्यूज चैनल देखते हो तो एक बिहेवियर डेवलप होता है, तो आप अपने प्रेजेंटेशन और अपने रिसर्च में वो बातें लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अच्छी गवर्नमेंट नहीं किया, क्वेश्चन वालों ने बताया। अब किसी का टॉपिक किसी स्पेसिफिक स्कीम पे है तो वही बोलता है कि अपोजिशन वालों ने ये बोला कि गवर्नमेंट ने सक्सेस। हम नहीं लिख सकते हैं, हमारे पास पूरा फैक्ट होना चाहिए। अगर वो बात सच भी है लेकिन सोर्सेज नहीं है, सो वी कैन नॉट राइट डाउन बिकॉज़ वहां पे आपका सोर्स। जैसे कोविड-19 में कितने डेथ्स हो गए, तो हम सबको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई पूरे दुनिया में, लेकिन उन पॉइंटों को हाईलाइट करने के लिए वी शुड हैव एम्पल रिसोर्स दिस रेफरेंसेस। तो उसके बाद जब हम स्कोप पे आ गए, स्कोप मीन्स हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, हम बता रहे हैं स्कोप में हमारा ये जो रिसर्च है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या नया है, हम क्या नया दे रहे हैं। तो हमने बताया फॉर एग्जांपल मैंने 30 स्टडीज की लिटरेचर रिव्यू निकाली, वो इन चीजों पे है, लेकिन कोई स्टडी नहीं थी जो फाइनेंशियल बिहेवियर और बेगर्स और स्लम्स पे थी। फिर दूसरा पॉइंट, आपने लखनऊ और कलकत्ता चूज क्यों किया? यहाँ पे आंसर होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं यही रहता हूँ लखनऊ में, मैं कलकत्ता में रह रहा हूँ, ये चीजें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हमें फैक्ट बता देनी। तो जो ना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा, मैं कुछ शेयर करूंगा क्योंकि मेरा रिसर्च जो है इकोनॉमिक्स का। लखनऊ और कलकत्ता क्यों चूज किया? नंबर 1, कलकत्ता में साउथ एशिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और जो बेगर पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा लखनऊ में। ये हो गया एक पॉइंट, क्योंकि दोनों रीजन में प्रॉब्लम है। दूसरा क्या हो गया, उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा है, जेंडर जो इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है, लिटरेसी रेट, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है औरतों को, वहाँ पे एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन है जो मार्जिनलाइज्ड है। तो इस तरह से मैंने इसका जवाब दिया कि मैंने लखनऊ और कलकत्ता क्यों चूज किया। तो आप ये जवाब से भी दे सकते हो जब किसी की सिक्योरिटी कानपुर पे है, कानपुर की औरतों पे है, या कानपुर की एग्रीकल्चर पे है, तो आपको रिलेटेड कानपुर रिलेटेड चीजें पढ़नी है। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हो, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आए। तो नेक्स्ट स्टेप है
अब हमारे पास रिसर्च गैप आ गई। रिसर्च गैप के बाद हमें दूसरा जो चीज होता है कि अब हम करें और करें क्या, इस तरह की क्वेश्चन है। रिसर्च गैप आ गई। अब दूसरा होता है, अब आपको डिसाइड करना है हमारा जो रिसर्च है ये प्राइमरी लेवल बेस्ड होगा या सेकेंडरी लेवल बेस्ड होगा, है ना? समझ आ रहा है मैं आपका लैंग्वेज में अब बात कर रहा हूँ। तो दूसरी बात परेशानी आ गई रिसर्चर को कि हमारा रिसर्च प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी। तो इससे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्राइमरी का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी का मतलब क्या होगा। प्राइमरी का मतलब हो गया जो हम फुल टाइम कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी जो ऑलरेडी है इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। तो उसके बाद देखना है कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करोगे तो फिर आपको एक कंसेप्ट मिलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इंपीरियल स्टडीज करना चाह रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स यूज करना चाह रहे हैं, जो एनोवा टाइप्स के डीटेक्ट वगैरह है वो अलग चीज है। वो टेक्स्ट वगैरह इकोनोमेट्रिक्स वो ऑलटुगेदर डिफरेंट। अब जो सोशल साइंस, प्योर सोशल साइंस, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, उनका रिसर्च थ्योरी का है। तो आप लोगों को एरिया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं। ऑब्जेक्टिव के आधार पे फिर से लिटरेचर रिव्यू होगा। पहले हमने लिटरेचर रिव्यू किया, अब होगा कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल रिसर्च लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक हो गया जनरल लिटरेचर रिव्यू, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू, फिर हो गया एम्पिरिकल लिटरेचर रिव्यू, फिर हो गया मेथोडोलॉजिकल लिटरेचर रिव्यू। पहले हम जनरल लिटरेचर रिव्यू किया, अब कंसेप्चुअल एंड थ्योरीज हम देखेंगे हमारे एरिया में कौन कौन सी थ्योरीज है, कौन कौन से कंसेप्ट्स है। लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नया कंसेप्ट है, इनोवेशन है। फिर हम देखेंगे इनोवेशंस में टाइप्स ऑफ इनोवेशन, थ्योरीज रिगार्डिंग इनोवेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस, इज देयर एनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी रिलेटेड एजुकेशनल बिहेवियर, थ्योरी रिलेटेड एजुकेशनल साइकोलॉजी एटसेट्रा। इस तरह हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग कंसेप्ट्स और थ्योरीज होंगे। जो आपने टॉपिक आइडेंटिफाई किया उस टॉपिक में की टर्म्स होगी, उन की टर्म्स के आधार पे आप कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फ्रेम करोगे। ठीक। उसके बाद जो आ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है हम प्राइमरी डेटा करेंगे या सेकेंडरी डेटा। अगर हमने प्राइमरी डेटा किया तो हमें क्वेश्चनर बनाना है, हमें डेटा करना है कलेक्ट। तो यहाँ पे फंस जाता है बंदा कि हम सैंपलिंग क्या करेंगे, कितना सैंपल साइज रखेंगे। तो इसके लिए एक बुक है जो आपको पढ़नी है, सैंपलिंग टेक्निक्स या कोई नॉर्मल सी रिसर्च। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने क्यों ये एरिया चूज किया, आपका सैंपल साइज क्या है, किस आधार पे आपने ये सैंपल साइज किया, कौन है आपके रेस्पोंडेंट्स, औरतें हैं, मर्द है, बच्चे हैं, है ना, बिजनेसमैन है, बैंकर्स है, स्कूल टीचर्स है। तो ये आप डिसाइड करोगे कि आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे। अब आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किया क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे। अब आप लोगों ने डेटा कलेक्ट कर दिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आप किस तरह करोगे। अगर थ्योरी है तो थ्योरी के हिसाब से आपको लिटरेचर में जो गैप्स आए उनको हाईलाइट करना है। अब आप लोगों ने डेटा कलेक्ट कर लिया, आप किस सॉफ्टवेयर में इसकी एनालिसिस करेंगे। तो बेसिक सॉफ्टवेयर है एसपीएसएस। एसपीएसएस की फॉर्म क्या है? हाँ, इस तरह है इकोनॉमिक्स में स्टेटा सॉफ्टवेयर, और नाउ आ गया आर सॉफ्टवेयर जो थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड है लेकिन अच्छे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आपने लोगों ने डेटा अपलोड कर दिया, अब रन करने हैं रिजल्ट। फॉर एग्जांपल हमारा डेटा, हमने कानपुर में कोई स्टडी की औरतों पे, तो उसमें रिजल्ट आ रहा है औरतों की स्थिति खराब है। ठीक, हमने ये रिजल्ट निकाल दिया मेथोडोलॉजी में। तो अब इस रिजल्ट को डिफेंड करने के लिए हमें अब लिटरेचर रिव्यू और डालना है, एम्पिरिकल लिटरेचर रिव्यू जिसको बोलते हैं, जो हमारी आर्गुमेंट को सपोर्ट करेगा। कुछ पेपर्स होंगे जो सपोर्ट करेंगे, कुछ पेपर्स होंगे जो सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर अब आपको कोई पेपर नहीं है तो आपको उसका ना कुछ केस स्टडी वगैरह टाइप बता देना है, उसको और एक्सप्लेन करना है। हो गए ये मेथोडोलॉजिकल चीजें। उसके बाद है जो आप कंक्लूजन और फाइंडिंग्स लिखोगे, वो आप किस तरह लिखोगे, कंक्लूजन और फाइंडिंग्स, रिजल्ट कैसे बताओगे, कैसे लोग आपका रिजल्ट अच्छा मानेंगे। तो आपको जो जितने भी दुनिया में या किसी इंडिया में पब्लिश हुए हैं पेपर उनको साइट करना है, 4 5 6। तो ये जो मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ
ये आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं होंगे जब तक आप ना रिसर्च पेपर में खुद घुस जाओगे। उसको 7 बार क्यों पढ़ना है? मैंने आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि कोई रिसर्च पेपर 7 बार पढ़ने को कह रहा है। जब आप उसको पढ़ोगे आप एक पेपर को रट लोगे, दूसरा आपको भी पैटर्न है ना, जैसे हम कोई एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, पैटर्न है फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में, उसमें जो डिफिनेशन है वो तो आएगी ही आएगी, है ना, और वो कुछ बताते हैं। इस तरह आपके सब्जेक्ट में जब आप लोगों ने पैटर्न को रट लिया तो आपको और चीजें भी आ जाएंगी, है ना। तो इसके बाद डिस्कशन वहां पे भी आर्गुमेंट होंगे, क्या होगा कंक्लूजन और फाइंडिंग्स। कंक्लूजन और फाइंडिंग्स में भी आपको उसी तरह से रेफरेंसेस देने हैं। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज होता है जिसकी वजह से भी ये पेपर रिजेक्ट होता है वो है, तो जर्नल्स है वो पूरी गाइडलाइन देते हैं कि आपका रेफरेंसेस की स्टाइल क्या होनी चाहिए। जर्नल्स की जो रेफरेंस की स्टाइल है वो है एपीए, तो वो फॉलो करना है स्ट्रक्चर में। अगर वो नहीं किया तो खत्म किया, वो रिजेक्ट हो जाएगा। 2 साल के बाद आपको रिजेक्शन आ जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। तो वो जो पिक्चर थी ना वो निकालो, क्योंकि मैंने इसको भी कहा कि वो पेश कर दिया। खाना खाना है सबको, आप लोगों को नींद आ रही है, तो आप 1-2 मिनट दे दो, है ना। आप लोगों ने आप बहुत पेशेंटली, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, ये आप लोगों को दिख रहा है। अब हम, ये है एक ही फोटो, एक ही स्लाइड है, इस पे आप ध्यान दे दो, फिर हम वाइंड अप करेंगे। अब है इंट्रोडक्शन, हम किस तरह लिखेंगे पेपर में, इंट्रोडक्शन का क्या पैटर्न होना चाहिए। ये आप लोगों को ना वो फिल करेंगे, सेंड भी करेंगे, मैंने उनको दे दिया, ये आप यहाँ से ले सकते हो। 1-2 मिनट लगेंगे सर। तो जो पैटर्न है पेपर का, पैटर्न क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन। पहले मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में सिंपली पहले 2 लाइन में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप इस तरह लिखो क्वेश्चन, व्हाट कंटेंट शुड बी इन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। नंबर 1, इट शुड हाईलाइट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, इट शुड आल्सो हाईलाइट व्हाई दिस स्टडी इज इंपॉर्टेंट। नंबर 3, इट शुड आल्सो हैविंग ए मेथोडोलॉजी। Number 4, it should tell us about the results and discussion. What is the finding of the paper? और इसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। समझ आ गया आपको? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका पेपर का, ये पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मेथोडोलॉजी आप लोगों ने क्या किया है, और फाइंडिंग क्या है। लास्ट में कीवर्ड्स 5 होने चाहिए। ये है पैटर्न, ये किसमें आने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद इंट्रोडक्शन। अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन में होने चाहिए 2 से 3 पैराग्राफ। तो वो क्या करने चाहिए, ब्रिंग द रीडर अप टू स्पीड ऑन व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। जब आप लोगों ने किसी पेपर का इंट्रोडक्शन लिखा, इसमें ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए 2 से 3 पैराग्राफ का। इसमें क्लियरली पता होना चाहिए रीडर को कि ये पेपर किसके बारे में है, ये क्या कह रहा है। ये आपको दिमाग में रखना है। ये अगर हम आप पेपर लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में 3 पैराग्राफ होने चाहिए, और उन 3 पैराग्राफ से हमें पता चलना चाहिए ये पेपर क्या है, किसके बारे में है, और क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर एक दूसरा पैराग्राफ नंबर दूसरा जो है, स्टेट व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज अननाउन। तो यहाँ पे आप बताओगे अभी तक जो रिसर्च हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई थी, उनका ये पैटर्न था, ये नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, 38 साल के बाद आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो और नया भी आप दे रहे हो। नया क्या है, सेकंड पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, स्टेट योर एम एंड हाइपोथेसिस। यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस बताओ। तीसरे पैराग्राफ में आप बताओगे दिस पेपर इज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जेक्टिव एंड वी आर फॉलोइंग दिस हाइपोथेसिस। हो गया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये जब आपको मिलेगा तो आप लोगों को ना और अच्छा समझ आ जाएगा। तो इसको थोड़ा वो करो। फिर है मेथड्स। मेथड्स में मैंने आपको पहले ही बताया, आप लोगों को मटेरियल कहाँ से मिलेगा, डेटा सोर्सेज क्या क्या है। मोटे मोटे डेटा सोर्सेज मैंने बताया, मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वहां पे जाओ। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे है IMF, वर्ल्ड बैंक, है ना। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री इस तरह भी है। तो यार ये आपको डेटा सोर्सेज में हेल्प करेगा। फिर है आपकी पॉपुलेशन क्या है, अगर प्राइमरी स्टडी है उसमें आपको पॉपुलेशन कितनी है, सैंपलिंग टेक्निक, उसके लिए आपको किताबें पढ़नी है। नोबडी विल हेल्प यू। रिसर्च में एक ऐसा चीज है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा देन यू कैन नॉट डू गुड रिसर्च। तो आप गुड रिसर्च कैसे करोगे, यू शुड हैव अ राइट डायरेक्शन। आप अपने सीनियरों से पूछो, अपने फ्रेंडों से पूछो जिनको रिसर्च के बारे में नॉलेज है। रिसर्च में एटीट्यूड नहीं चलता है।
are having an attitude, you will not take help of others, you will not be a good researcher. Good researcher is always asking questions or taking help from seniors or professors. So therefore, you have to be always, keep your mind open. क्योंकि जब आपको लर्न करना है कोई चीज है, जब आप कोई चीज सीखोगे कितना अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पहली बार चलाना है, इंस्टाग्राम का फोटो चलाना है ना, ये है, तो जब आपको ये आ जाएगा, आपका सुंदर फोटो आएगा, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक तो सेटिस्फेक्शन मिल गई, मेंटल पीस मिल गया, दूसरा आपने स्किल भी सीखा। इसी तरह से रिसर्च जब आप ऑफिस करोगे ना, आपका नाम आ जाएगा रिसर्च गेट पे, गूगल स्कॉलर पे, लोग आपको साइट करेंगे। यू कैन शेयर इट ऑन सो मेनी सोशल मीडिया। आप ट्विटर पे, लोग जो रिसर्च की एक्टिविटी शेयर करते हैं ट्विटर पे और लिंक्डइन पे। सो अगर आप लोग लिंक्डइन पे नहीं हो या ट्विटर पे नहीं हो, क्रिएट अकाउंट एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ टू द ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ रिसर्च। ठीक है, आउटकम रिसर्च के। अब आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी की, आपके रिजल्ट्स आ गए, यहाँ पे आपको सोर्सेज देने हैं। कितने पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश है जो आपके फाइंडिंग से सहमत है, कितने हैं जो आपको देना है, तो फिर आप उसमें लिख सकते हो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यहाँ पे इकोनॉमेट्रिक्स का मल्टीवेरिएट, तो हर एक सब्जेक्ट के अपनी अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। जैसे सोशल साइंस के आपके वो मिक्स्ड मेथड यूज करते हैं, वो ज्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं करते, क्वालिटेटिव एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सोशल साइंस वालों को मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, ईपीडब्ल्यू के नाम से एक जर्नल है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। अगर आप उसका एक पेपर पढ़ोगे, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उसके रिसर्च पेपर पढ़ो। आगे देखो, फिर रिजल्ट को हमें किस तरह स्टेट रिजल्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, आपके रिजल्ट क्या है, फिर उनका रेफरेंस देना है, फाइंडिंग्स, लॉजिकल नैरेटिव, आपको फाइंडिंग्स देने हैं। फॉर एग्जांपल मेरी फाइंडिंग, फॉर एग्जांपल मेरी फाइंडिंग आ गई, जो यूके जो एनडीए गवर्नमेंट है करंटली, कुछ प्रॉब्लम्स है पॉलिसीज में, है ना, ये आ गई आप मेरी फाइंडिंग। अब मुझे फाइंडिंग को सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट के खिलाफ आ रहा है, ठीक है। अब हमें रिसर्च में ही बताना है, डरना नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सुटेबल रिसर्च पेपर होने चाहिए। या कांग्रेस गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज में उनका वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक हमें रिपोर्ट राइटिंग पे। तो हमें हर बार ये दिमाग में रखना है, हमें खाली कमेंट्री नहीं करनी है, हमें पता ये नहीं बता देना है ये गवर्नमेंट खराब है, वो गवर्नमेंट खराब है। रिसर्च में फैक्ट चाहिए, फैक्ट विद फिगर। तो हमें आर्टिकल्स को साइड करने हैं कि ये फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का फाइनेंस, ये जो है ना, अभी जो बजट में जो नया चीज आ गया कि टैक्स बेस हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम फाइनेंशियल डेफिसिट कम करेंगे, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, कैसे करेंगे। तो लेकिन हम ये रिसर्च में तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग ना हो, या कोई रिसर्च आर्टिकल हमें साथ नहीं देता होगा, तब तक हम नहीं कर सकते। इसी तरह है, फिर डिस्कशन हमने कर दिया है ना, फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमने क्या किया है, डेटा वेटा कुछ शेयर नहीं करना है, उसमें बता देना है। फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस स्टडी इज अबाउट स्लम्स एंड बेगर्स, जो मैंने आप लोगों को अपना ना एग्जांपल दिया अपने रिसर्च का। तो आई हैव एक्सप्लोर्ड इट इन फाइनेंशियल बिहेवियर इन द सिटीज बाय लखनऊ एंड कलकत्ता, द फाइंडिंग्स आर लाइक दिस। तो इसमें कोई डेटा वेटा नहीं होना चाहिए। तो ये था ओवरऑल, ये सब चीजें आप लोगों को शेयर करेंगे, है ना, तो हो गया। इसमें सर एक चीज, जैसे मान लीजिए तो आपने सोशोलॉजिकल या फिलासफिकल अगर कोई रिसर्च है, उसमें कोई डेटा नहीं होगा, तो उसका बेस कैसे मतलब मैंने बोला ना, हर एक सब्जेक्ट का अलग है, हाइपोथेसिस भी नहीं होगी और ना तो ही डेटा होगा। हाँ जी, तो उसको कैसे क्या करेंगे? हर एक का नहीं होगा। मैंने आपको आज मत करो, आपस में हर एक सब्जेक्ट अलग अलग है। जैसे सोशल वर्क है ना, ये इकोनॉमिक्स से आर्ट टुगेदर है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, वो आर्ट टुगेदर डिफरेंट है, वो एक पर्सनालिटी में रिसर्च करते हैं। जैसे उर्दू है, उनका अलग है, वहां पे ना ऑब्जेक्टिव होता है, ना हाइपोथेसिस होती है, ना मेथोडोलॉजी होती है। हर एक सब्जेक्ट का जो है अलग अलग रिसर्च पैटर्न है। जैसे आपने फिलॉसफी की बात की, तो आप फिलॉसफी का लिटरेचर पढ़ोगे, एक पेपर कितने बार, 7 बार, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा ना, तो आपको वही आंसर है।
आपको फिर उधर इधर नहीं देखना है। अगर मैं फिलोसफी का पेपर पढ़ूंगा मुझे वो समझ नहीं आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम पैटर्न फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। तो मुझे आपका समझ नहीं आएगा, मैं बोलूंगा ये बेकार है। या अगर आप मेरा इकोनॉमिक्स वाला पढ़ गए, आप बोलोगे यार ये क्या है। तो देयरफॉर हर एक सब्जेक्ट हर एक लिटरेचर में ऑलरेडी डेवलप्ड लिटरेचर है। सात बार आप अच्छा स्टैंडर्ड पेपर पढ़ोगे अपने सब्जेक्ट का, चाहे वो सोशल वर्क का है, चाहे इकोनॉमिक्स का है, चाहे सोशियोलॉजी का है, ऑल साइंस, you will have a green signal to be, good research scholars. You cannot be good research scholars without reading or writing. So you have to develop reading, behavior. You have to modify your behavior towards reading. और हाउ में कोई अच्छा रिसर्चर नहीं बन पाएगा, हाउ में किसी की अच्छी पब्लिकेशन नहीं हो पाएगी। एटलीस्ट अगर आप साल में एक ही पेपर करोगे, उसको पढ़ो पूरे साल, रिविजन करते रहो। एक बार आप ट्रैक पे आ गए, अगर आप लोगों को एक साल लगेगा अच्छा पेपर पब्लिश करने में, एक साल, तो जो आप उस एक साल में स्ट्रगल करोगे, रिजेक्शन आ जाएगा, अच्छा नहीं बन रहा है समझने, एक साल की जो मेहनत है ना, उसके बाद योर माइंड विल रन, यू नो बी एबल टू फॉर्मेट और प्रेजेंट पेपर इन 2 मंथ्स। तो इसमें मेहनत लगेगी। जब आप एक्सपर्ट होंगे, जब आप टीचर बनता है ना कोई, पहले अगर आपको थोड़ा ना बिगनिंग में ABCD बच्चे को सिखाना है, उसका दिमाग कमजोर होता है, बेचारे को समझ नहीं आता है। तो फिर आप उसी पैटर्न को देखो, अपनी लाइफ का पैटर्न, जब हम छोटे बच्चे थे ABCD कितना मुश्किल था, फिर मैथमेटिक्स हमारे लिए कितना मुश्किल था। तो once it comes in our mind, then we are doing mastery. जब आप मास्टरी, तो आप ऐसे इसके वो नींद में भी सुनाओगे ABCD, कैलकुलेशन 1 2 छोटे छोटे कैलकुलेशन आप नींद में भी करोगे, क्योंकि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल लर्निंग है। Therefore, with this, we are going to conclude. तो ये है प्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों को ये, यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, तो आई विल बी देयर। सो जो भी कुछ डायलॉग्स वगैरह करने होंगे रिसर्च में, वो हम कर सकते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर पेशेंस, टाइम था लाइन का। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मुझे सेव प्रेजेंटेशन की तकरीबन 2 घंटे, अगर हमें 1 बजे स्टार्ट होता तो आप लोगों को ना मैं अच्छे से समझाता। तो अब मैंने बीच में जंप किया, मैंने प्रेजेंटेशन को टाइप नहीं किया, बेसिक चीजें बता दी। बट आई विश कि हम कहीं और मिले और अच्छे से रिसर्च करें। लेकिन पैटर्न ये है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आप अच्छा रिसर्चर नहीं बनोगे। दूसरे लोगों से हेल्प ले लो, सीनियर से डिस्कस करो, कोलैबोरेशन में करो। Thank you very much once again for this opportunity from Kanpur University for giving me time to interact with these young men. You are really young, smart, and passionate. Definitely, you are having a bright. ये PPT प्रोवाइड हो जाएगी क्या ग्रुप में?